Good morning, friends, and welcome to Trans India Real People, Real Emotions. All India Motor Transport Congress is the oldest apex body of transporters and truckers in the country. And while everyone keeps a close eye on its activities, the biggest draw is the elections, which takes place every 2 years to elect the new committee. The election process of AIMTC is a tedious and time consuming process with a lot of complexities. The members first elect the managing committee from all states, who later elect the 4 office bearers, 1 president, and 3 vice presidents. Interestingly, the entire voting process is done via postal ballot. AIMTC Secretariat sends ballots to all eligible members who cast their vote and send their ballots back to the office for counting. Needless to say, managing the elections is a very tough task for a number of reasons. There are way too many complications and the stakes are very high. It's not just election of members, it's often a clash of egos and opinions. Therefore, the role of the election officer is very critical, and not only is he required to be impartial, he is also required to take some tough decisions under a lot of pressure. While the election officer of AIMTC has been from Delhi for a long time, this time the association selected the chairman of AIMTC, Dr. G.R. Shanmugappa, as the chief election officer. GRS, or Guruji, as he is fondly called, is amongst the most respected people in the association as well as the industry, and he is known to take some tough calls. His career in the industry has not been an easy one either, as he started his journey as a coolie, then a truck driver, before becoming a transporter and also heading AIMTC as its president. Amidst the election process, which had its share of controversies, Trans India caught up with GRS at the AIMTC headquarters in Delhi to know more about the process and what it takes to be an election officer. We also spoke to GRS about toll tax, an issue that he has been pursuing for many years. While he has clearly stated that the industry is not against toll tax, the policies need to be cleared out. So let's get into our conversation with Dr. G.R. Shanmugappa, the chairman and election officer of AIMTC. ये आप इलेक्शन ऑफिसर बनने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ऑल इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस जो लॉज है उनमें बहुत लूपहोल्स भी हैं, फिर भी आपने ये मुश्किल टास्क क्यों चूज किया? हम बिगिनिंग में मना किया, एंटायर कंट्री में फॉर्मर परसेंट लोग सब ने हमको बहुत प्रेशर कर दिया पांडिचेरी मीटिंग में। देखो हम तो वेरी स्ट्रिक्ट आसानी है, इसमें क्या होता है मालूम नहीं है। आरएनए में इतना दिन कचरा क्या भी किसी होता है, वो होता है, एल्स होता है, वो होता है, इधर से इधर ये क्या क्या क्यों हो रहा है, सुन रहा है हमें, हमको क्यों फंसाता है। नहीं, फाइनली बहुत प्रेशर किया, अच्छा करके देखेगा, करके हम लोग ले लिया। लेकिन लेने के बाद आपको ऐसा फील हो कि मैं कहाँ फंस गया वहां की? नहीं, हम क्या नहीं करता, एक काम जॉब देने के बाद हम पीछे नहीं हटता जिंदगी में कभी भी। किसको भी डरने वाला नहीं है, किसको भी पीछे हटने वाला नहीं है हम। लेकिन आपको क्या लगता है सिस्टम में लूपहोल्स है बहुत आगे जाके ठीक करना है? अभी 70 को 5 साल 80 साल हो गया ये बैला बना के, नया बैला में बहुत लूपहोल है। एक था अभी जोन का इलेक्शन था, जोन का इलेक्शन टाइम में हम लोग गुजरात, हम लोग बाद में कानपुर, बाबा सब मिलके एक स्टेट इलेक्शन हो गया तो अच्छा रहेगा कर कोशिश किया, वो विधान बदली किया। एक जोन का एक विधान है, ये सच बताता है हमें, पूरा एंटायर कंट्री में ये बहुत बड़ा संस्था है, ये मंदिर है, मॉस्क है, चर्च है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना। एक जोन में एक धर्म एक प्रेशर करना पड़ेगा। पिछले देखा तो हमको बहुत बड़ा गलत लगा, साउथ में आके तैरने का, ईस्ट में आके तैरने का, ये सब अच्छा नहीं लगा हम लोग को। फिर भी हम लोग इलेक्शन बहुत सीरियसली करना करता हमारा मन में आ गया। ये हम आड़ो किया, ये हम लोग बिना वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स वोटिंग के लिए होना पड़ेगा।
आधार कार्ड होना पड़ेगा उसका खुद का नाम में, ये सब हम लोग स्टडी करके केवाईसी बनाना पड़ेगा, इसको पीछे ये लोग करता था। केवाईसी रहेगा तो वोटिंग को रहेगा, ऐसे ऐसे हम स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट किया इस टाइम। लेकिन ये बार केवाईसी है कि नहीं है? नहीं, स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट किया। अच्छा, केवाईसी रहेगा तो आप लोग नॉमिनेशन कर सकता है, ऐसा करके हम लोग डिसाइड नहीं किया, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में डिसाइड किया। वो दिन बनेगा मतलब हम प्रयास किया, फिर भी 20-25% आदमी केवाईसी है, बाकी सब आने का जाने का, ये दुर्गा पूजा ये सब हो गया, इसलिए हम लोग फाइनल डे में ये विड्रा किया। फिर भी हम लोग आज से वो कंटिन्यू है। अभी पेपर डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, हमारा मन में ये है। 1936 से आज तक इतना बड़ा संस्था में अभी लूप और कुछ भी नहीं रहना, प्रॉब्लम नहीं रहना करके हम लोग ये उसी सिस्टम बना के अभी गुजरात निमिष मुकेश का सलाह लेके हम अभी प्रॉपरली ये वाटर का पुराना वाटर कौन कौन है ये लोग का सब डिजिटल बना के रख देगा। ये आप एक सिस्टम से बहुत सिस्टम से कर देगा। ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम इलेक्शन ऑफिसर बनने के बाद लोग को बोला था, देखो ये कंपटीशन आ गया, इलेक्शन में आ गया, जीत गया, एक में हार गया, ये हम लोग विरोध हो जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है, कोशिश कर लीजिए आप, रिक्वेस्ट किया। ये बात बोला था, बिगिनिंग मीटिंग में भी बताया था। इसलिए एंटायर कंट्री में कहाँ भी इलेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। महाराष्ट्र और गोवा में, ओनली गोवा, महाराष्ट्र भी विड्रा कर दिया। अच्छा, महाराष्ट्र भी विड्रा कर दिया। ओनली गोवा, ओनली 14 मेंबर्स का है, एक सीट के लिए थोड़ा वहां क्यों गोवा फर्स्ट एंट्री किया इसमें, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग क्या बोल रहा है, सिस्टम बना के रख दिया तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। हम भी इलेक्शन ऑफिसर में बहुत पर्सन आता है, इधर उधर आता है, हम लोग किस भी नहीं सुनता, हमारा क्या है वही करके जाता है। लेकिन कई लोगों को ऑल इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस नहीं पता है। आप एक बार एक्सप्लेन कर दो कि इनका प्रोसेस कैसे होता है। प्रोसेस कैसा होता है, बिगिनिंग में सबका मेंबरशिप 8,000-9,000 मेंबरशिप है, वो एंटायर मेंबरशिप लोग को ऐसा बताता है, हम लोग इलेक्शन काम कारवाई शुरू हो रहा है, आपका केवाईसी बना के भेजो। थोड़ा आदमी की चिट्ठी मिलता है, थोड़ा आदमी की चिट्ठी नहीं मिलता है, ये मेजर प्रॉब्लम है। बाद में वोटिंग करने के टाइम में इधर उधर वोटिंग घूम के कर करता है, वो भी मेजर प्रॉब्लम है इसमें। बाद में ये लोग का मिलने के बाद हम लोग लोकल डिस्ट्रिक्ट तालुक लेवल में हम लोग पूछ के बात करके ये उसका मिला क्या, हम चिट्ठी भेजा उसको मिला क्या, इसलिए क्या किया, हम वेबसाइट में डाल दिया लिस्ट। पोस्टल बैलेट में मैंने भी देखा है कि कई लोग हैं जो बैलेट पकड़ के बैठते हैं अपने हाथ में। बैलेट पकड़ के नहीं, पोस्ट ऑफिस में खींच के लेकर जाता है, उसका नाम मालूम नहीं होता है, इसका नहीं मालूम होता है। बाद में वो पेपर बहुत पुराना 70 साल का आदमी है, 25 साल का आदमी है, वो लोग डेथ हो गया, अभी कम से कम मैं अगर अभी ये इलेक्शन में कौन कौन देखते हैं उसका वोटिंग नहीं है, इसके पीछे होता था, हमको मालूम नहीं है, मगर अभी कम से कम 300 अबव देता है। मैनेजिंग कमेटी में कितने सीट्स हैं अभी? अभी 200 है। तो पहले आपका 200 मैनेजिंग कमेटी सीट्स का इलेक्शन होगा, उसके बाद आपका ऑफिस बेरर होगा। अभी मेंबर्स लोग होने के बाद नॉमिनेशन करेगा, नॉमिनेशन करने के बाद नॉमिनेशन टिक करके हम लोग टाइम देके 2 महीना टाइम दिया, एंटायर नॉमिनेशन चेक किया, चेक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट तालुक में जोनल लेवल से आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंटायरली पेपर प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट टाइम नॉमिनेशन पेपर भेजता है एमसी मीटिंग के लिए। दिस टाइम एमसी मेंबर्स के लिए सब स्टेट में आया, तमिलनाडु, बाद में महाराष्ट्र, गोवा, 3 जगह में नॉमिनेशन थोड़ा ज्यादा आया। रिटर्न लेने के लिए 1 वीक टाइम दिया था, उसमें सब आदमी रिटर्न ले लिया, वो सब अनानिमस हो गया, पूरा अनानिमस हो गया। बाद में लास्ट ओनली गोवा बचा, गोवा में इलेक्शन हुआ, आज काउंटिंग है अभी गोवा का। ठीक है, ये होने के बाद एजीएम करेगा, एजीएम में एंटायर कंट्री से सब आदमी टेक ओवर करेगा, एमसी मेंबर्स टेक ओवर करने के बाद इलेक्शन प्रोसेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का शुरू होगा। मुझे आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है एज इलेक्शन ऑफिसर, 2 साल बाद अगर आपको वापस ऑफर करोगे, आप ले लोगे ये सीट? नहीं, देख ले वो सब अभी ये बहुत स्ट्रिक्टली जाता है,
नाराज हो रहा है आदमी लोग, बहुत नाराज है, बहुत प्रेशर है, अब कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे तो ख्याल से- आदमी ये इसको क्यों बनाया इलेक्शन ऑफिसर कर तो समझ गया बहुत आदमी। मेरे ख्याल से आपका नॉर्थ जोन का वाइस प्रेसिडेंट भी नाराज है आपसे शायद, अच्छा, है कि नहीं? सब नाराज है, क्या करना है? बहुत तकलीफ का काम है, बहुत तकलीफ का काम है। वो तो है बिल्कुल। मगर अभी सब स्टार्टिंग डे से सब रिकॉर्ड रूम लॉक कर दिया हमने, एंटायर सीसीटीवी कनेक्टिविटी कर दिया, सब आदमी लोग का, हमारा ऑफिस में रहने वाला का सबका मोबाइल रिकॉर्डिंग में डाल दिया। अच्छा, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, इसलिए सबका प्रॉब्लम है। मतलब मेजर खर्चा होता था, अभी 500 भी खर्चा नहीं किया दोस्ते। वेरी गुड। मुझे टोल टैक्स पे आप बहुत सालों से मेहनत करते आ रहे हो, अभी इसका स्टेटस क्या है और अभी आपका डिमांड क्या है टोल टैक्स को लेकर? लोग सुनना पड़ेगा, ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर आपको चुनाव करके बेचता है, आप प्रेसिडेंट होने दो, वाइस प्रेसिडेंट होने दो, डिस्ट्रिक्ट तालुक लेवल प्रेसिडेंट होने दो, आपका कमिटमेंट क्या है? टोल टोल करके आप 15 साल से पूछ रहा है हमको, टोल में ऐसा मिसयूज हो रहा है करके बोल रहा है, सब पेपर वाला पूछ रहा है, सब भी पूछ रहा है। ये लोग एजुकेट करके एक प्लेटफॉर्म में लेकर आने के लिए इसको कितना तकलीफ होता है मालूम है। आराम से विन होने का, बैठने का, प्रेसिडेंट को नाम डालने का, कार्ड छपाने का, जाने का, बस। सबको नहीं बोलता है एरिया में, मेजर एरिया में इतना ऑल इंडिया अपेक्स बॉडी, इतना पावरफुल बॉडी। हाफ टाइम पत्कर 30 साल पीछे था, हम लोग बहुत स्ट्रांगली लड़ा, वो 10 सीनियर लोग के साथ में था, लड़ा। हाफ टाइम पत्कर करोड़ ऑफ रुपीज रेवेन्यू वापस ले लिया। वही डर में हमको नेशनल परमिट क्यों नहीं देना, ऐसा आपको बहुत पैसा लूट हो रहा है करके बताने के बाद सरकार 15,000 में नेशनल परमिट दे दिया। ड्राइवर लोग का हम बहुत फाइट किया, उसका 36 टाइम दिल्ली आया। बाद में ड्राइवर लोग का लाइसेंस मिलना, विदाउट एजुकेशन लाइसेंस नहीं दे सकता करके ऑर्डर मंगाया। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल में मीटिंग में एक ही बात दिया, आपका मिनिस्टर लोग का क्या फिट किया। हमारा स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर 5th स्टैंडर्ड पास है, उसको कैसा मिनिस्ट्री दिया, हम लोग को क्यों फिक्स करना? प्रैक्टिकली हमको देख लीजिए, ड्राइवर का हम कौन आ रहा है, रूरल में लेबर के क्लीनर के ड्राइवर हो के आ रहा है, दूसरा आदमी कोई भी नहीं आ रहा है। आजकल आईटीबीटी पढ़ने वाला बच्चा लोग रुक दिया, वो लोग फादर लोग ड्राइविंग में भी नहीं जाना, रुक दिया। अनफॉर्चुनेट हमारा बहुत बड़ा सक्सेस है, ये मैन्युफैक्चरर्स बहुत बड़ा काम किया, 10 ट्रक का गाड़ी का 12 किया, 12 का 15 किया, अभी एक ही ड्राइवर 50 टन के लिए हो गया। 50,000 ट्रक लाने के टाइम में 5,000 ट्रक एनफ करके अभी लोड का रोटी बनाया। बाद में सरकार को भी धन्यवाद देते, वो भी लोड इंक्रीज कर दिया 20% टैक्स कलेक्ट कर रहा है। ऐसा टाइम में हम लोग यूनिटी होके, हम लोग टोल निकालते नहीं, निकालने का हमारा मन में नहीं है। सरकार को कैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लोग बोल रहे हैं वो टैक्स दिया, ये टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया, वो पागल लोग है, क्या बात करते हैं समझ में नहीं रहे। तो टोल क्यों? कम से कम 7 लाख करोड़ सरकार इन्वेस्टमेंट करके रोड बनाया, ठीक है, हम लोग उसको विरोध नहीं करता। हम लोग का एक ही है, 2008 में हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट करके इसका एक रिजल्ट बना के सरकार का पास डिस्कशन करके, ऐसा कौन सा स्टेक होल्डर का रेवेन्यू खत्म हो गया, रेवेन्यू जनरेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट उसको रिकवरी हो गया, वो आदमी सरकार को हैंड ओवर करना पड़ेगा। सरकार को हैंड ओवर करने का बाद सरकार 40% टोल लेना पड़ेगा, मेंटेनेंस चार्जेस, राइट। ये ओनली एनफ है हमको। तो आज के डेट में आप बाद में क्या किया, इसके बारे में बहुत कोशिश करके पर्टिकुलरली द गुजरात निमिष पटेल, मुकेश दवे बहुत फाइट किया इसके बारे में। हमारा प्रेसिडेंट आने के बाद यही काम में लग गया, मदान जी, बल साहब भी, कौन अभी फिंगर काउंट में है काम करने वाला, बहुत आदमी प्रेसिडेंट होता है चले जाता है, वो आता है जाता है, वो बात अलग है। कमिटमेंट रहना पड़ेगा, हम लोग का कमिटमेंट है, पूरा कमिटमेंट रहेगा तो हमारा साथ देता है वो, ठीक है। बाद में अभी हम लोग क्या किया, कोर्ट में डाला, टाइम देख के कोर्ट में डाला, गुजरात हाई कोर्ट में। ऐसा हम लोग को ये
एक्चुअली टोल निकल गया, आरटीजीएस में ले लिया, चिट्ठी लेकर के हम लोग चेयरमैन एनएचए को दे दिया, देखो इसका पैसा 2800 करोड़ कलेक्ट हो गया, इसका इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़ था, ये उसको 15 साल हो गया, सब हो गया, सबको सब दिखाने के बाद जजमेंट आ जाएगा अगर को थिंक किया था। अनएक्सपेक्टेडली सरकार क्यों ऐसा किया, हमको बहुत बड़ा दुखी हो गया। सरकार में कांग्रेस सरकार ठीक नहीं है, वो गलत करके जा रहा है, वो लूट के लिए रास्ता बना दिया कर हम बताता था। फाइनली ये बीजेपी गवर्नमेंट 2008 वो एक्ट को बदली करके, एक्ट में रूल को बदली करके हमको रोल डालने का आवश्यकता है, पैसा जरूरी है, डेवलपमेंट का पैसा जरूरी है करके हम लोग को वो पॉइंट निकाल दिया 40%। सरकार का कम से कम 130 to 160 टोल्स हैंड ओवर कर दिया, सरकार वाला 40% करेक्ट करना, फिर भी आपको मालूम नहीं, आप शॉक हो जाएगा, रोड सेल हो रहा है। 1,30,000 करोड़ में रोड सेल कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, फिर भी सरकार को बुद्धि नहीं आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को थिंक करना पड़ेगा। हम एक ही रिक्वेस्ट है, कोरोना टाइम में हम व्हीकल नहीं चलाया, आराम से घर में बैठा था, आपके लिए, आपका वास्ते, आपका फ्यूचर अच्छा रहना करके अभी आप देखा हमें टायर का कास्ट हो गया, टोल का कास्ट, अभी डीजल का कास्ट आ जाएगा अभी थोड़ा दिन में, क्रोस सब भी लूट रहा है। हमको बहुत बड़ा शॉक लगा है, क्यों हो रहा है, सरकार को निवेदन है, सरकार को मालूम है नहीं मालूम है, मालूम नहीं हमको। अग्रीमेंट करने के बाद अभी 2-3 टोल हो रहा है, बैंगलोर टू चेन्नई रोड बनाने को टाइम में 3,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, 6,000 अबव कलेक्ट हो गया, अभी तक रोड नहीं चलता है। ऐसा बहुत जगह में सरकार लेके वो सेल करने का ये अच्छा नहीं है। 10 दिन कुछ भी नहीं बात करना, कोई भी नहीं बात करना, उसका गाड़ी उसका घर का पास खड़ा कर दो, सरकार आएगा, डिस्कशन करेगा, 40% कसम का के बोलता है लिख के देगा वो। हम लोग का यूनिटी नहीं है, हम लोग एक काम करने वाला नहीं है, सरकार को दबाओ कितना दबाओ तो सरकार सुनने वाला नहीं है। We will continue our interaction with GRS after this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं। पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी, छोटी से छोटी चीज़ मेरी प्रायोरिटी है। वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है। आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है तो कोई बजट की। लेकिन इतने सालों में एक चीज़ समझ आई है, अगर सही डिसीजन लें तो सबसे ज़्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है। चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, आईमैक्स, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सब के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस, महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बस। Welcome back to Trans India, real people, real emotions. We are in conversation with Dr. G.R. Shanmugappa, the chairman and election officer of All India Motor Transport Congress. क्योंकि आप सिमटा के जैसे सेक्रेटरी हो, सिमटा में जो टैक्सी वाले और कैब वाले हैं वो लोग जो चार्ज करते हैं फ्रेट प्लस टोल टैक्स, क्या वो सिस्टम ट्रक में भी नहीं हो सकता? गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है, ये हम देख चुके हैं। टोल टैक्स कम हो रहा है, ये बहुत मुश्किल लगता है। तो क्या हम ये बर्डन अपने कस्टमर पे पास ऑन कर सकते हैं? अभी वैसे देख लिए, वो लोग का रेट फिक्स है, टैक्सी वाला का रेट फिक्स है, ऑटो रिक्शा का फिक्स है,
बस का फिक्स है, हम लोग का फिक्स नहीं है। लेकिन जो भी सरकार रोड प्लस टोल नहीं, टैक्स, सरकार ऑलरेडी फिक्स किया, प्लस टोल टैक्स वो कलेक्ट कर रहा है। हम बोला तो दो बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्ट बुकिंग वाला को टोल का हम लड़ने का नहीं है। ये केजी में हम लोग 5 पैसा ऐड कर दिया, फिर भी टोल हो के फिर भी ज्यादा पैसा हमको आता है। आप लोग क्यों करता रहे? ये मेजर प्रॉब्लम है। अभी क्या व्हीकल इंक्रीज हो गया, ये ऑनलाइन बुकिंग हो गया, ये लोग का मालूम नहीं होता वो लोग क्या बुक किया। ऑनलाइन होने का बाद सरकार सत्यानाशन हो गया। इसके पीछे एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट का अभी एक ही सवाल है। हम लोग जीवन में इतना काम करने के बाद ये इसको कैसा बचाना। हम लोग कर्नाटक में पर्टिकुलरली नंजनगुडी एरिया में शुरू किया, अभी होस्पेट में शुरू किया, अभी तुमकुर में शुरू किया। ट्रांसपोर्टर का पास डिस्कशन करता है, देखो हमको भाड़ा चाहिए, वो बोल रहा है हमको फैक्ट्री वाला कंटेनर इतना भाड़ा देता है, हम क्या करना। टेंडर आप लगाने को टाइम बोलो, टेंडर कंप्लीट होने के बाद उसका पास डिस्कशन करता है, एक एक करके जा रहा है। अभी टेंडर कंप्लीट होने के बाद हम लोग बैठ के हमारा भाड़ा ये है, पूरा एंटायर कंट्री जाने का इतना भाड़ा है, एशियन पेंट हमारा भाड़ा इतना है, ऐसा कर दो। ट्रांसपोर्टर बोलता है, ट्रांसपोर्टर ट्रक का मिल के जाना पड़ेगा। वहां स्टेट में अलग अलग होता है, ये बहुत बड़ा। अभी हमारा कर्नाटक में ट्रांसपोर्टर ट्रक का रिएजेंट सब अभी मिल के जा रहा है। बाद में वो टूरिस्ट वाला चिट्ठी देने के बाद हमको भाड़ा फिक्स कर दिया, ड्राइवर ट्रक का आराम है मैसूर में। तो हम लोग को अगर फ्रेट मिलता है तो हम लोग को जरूरत नहीं, टोल का टैक्स का बात नहीं करता है, किसी का बात करने का जरूरत नहीं है। हमको हमारा फ्रेट नहीं तो सरकार ये डिसाइड करना पड़ेगा, कंटेनर कंटेनी टोल देना पड़ेगा। नहीं तो सरकार खुद डिसाइड करना पड़ेगा, कंटेनर टोल दो। किसका माल है उसका माल, किसका माल है उसका हमाल कैसा, किसका माल है उसका टोल, ऐसा करके करना पड़ेगा। सरकार कर दिया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है रूल में। हम लोग बिलो पॉवर्टी का आदमी है, अनादर सेक्टर है, कहां भी कंट्री में लोडिंग पाइन अनलोडिंग पर एक एक बड़ा बड़ा कंट्री में 500 गाड़ी 600 गाड़ी 700 गाड़ी रहता है। ये तो 78% ट्रक का सब सिंगल ऑपरेटर, 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी रहने वाला है। इसलिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कुछ ना कुछ अच्छा दिन आएगा, हम लोग कोशिश करेगा, छोड़ने वाला नहीं है। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ऑल इंडिया एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग बॉडी थी। दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आज ऑल इंडिया उतनी ही स्ट्रांग है? अभी हम बताया था ना, कहां का लोकल है, सब मिलके स्ट्रांग कर दे तो मजबूत किया तो ऑल इंडिया मजबूत होता है। डिस्ट्रिक्ट तालुक वाला मजबूत हो तो ऑल इंडिया मजबूत होता है। मजबूत है फिर भी 70% कमजोर है। इसके लिए सब मिलके काम करने का शुरू कर दिया। अभी 2 साल में बहुत बड़ा काम करने के लिए मौका दे दिया हम लोग को, बहुत बड़ा। अभी मध्य प्रदेश में बाढ़ से को हटाने के लिए कोशिश किया। अभी नेक्स्ट कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब बाढ़ से को हटाने की कोशिश किया तो सरकार फिर भी आके दबाया। अभी क्या किया, ये क्या किया, कागल में आज खोला टोटल 23 प्लेसेस बॉर्डर चेक पोस्ट है, 19 चेक पोस्ट खोली है। ये क्या तमाशे वाला है, क्या मालूम नहीं है, इसको पूछने वाला नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ठीक रहे तो पूछने वाला रहता है, ऑर्गेनाइजेशन कहां ठीक नहीं है वो पूछने वाला नहीं रहता है। हमको बोला था पैनिक बटन, हम लोग नहीं लगाता है। स्टिकर हम लोग को मालूम है डायरेक्टली कंपनी करता साउथ में। डीजल प्राइस जिंदगी में हम लोग नहीं छोड़ेगा, हमारा डीजल प्राइस हाइक नहीं करना। 3 साल हो गए एंटायर कंट्री में, दिल्ली में हमारा कम है डीजल प्राइस। एंटायर कंट्री में हमारा को ज्यादा है, ओनली कर्नाटक बोल रहा है। तमिलनाडु में भी ज्यादा है, आंध्रा में 10 रुपए ज्यादा है, तमिलनाडु में 6 रुपए ज्यादा है, नेबर स्टेट में। फिर भी हम लोग यही निवेदन रखा सरकार का पास, टोल में कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा। चिट्ठी दिया, नहीं तो हम लोग 21 डेज टाइम देना पड़ेगा। 101% है, 300% हम गया तो सक्सेस होता है, चक्का जाते नहीं तो नहीं हो सकता है। बाद में अभी रेट बढ़ने का बाद हम लोग कैसा डिस्ट्रिक्ट तालुक में अच्छा है, ऐसा ही मौका ये लोग देखना पड़ेगा। ये हमारा ओपिनियन है। It is very clear that the election process and system of AIMTC needs to undergo a massive transformation. While the association has been working on the same, the process is taking longer than expected. With technology available in abundance, this ideally should not take very long. But we hope
that the new team will speed up the process of cleaning up the system and making it more transparent and less controversial, and in the process, also making life simpler for the future election officers. We will be back again next week with yet another interesting interaction. You have been watching Trans India, Real People, Real Emotions. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.